Okay, student, I am on page number 25 of our NCERT book, and here we are discussing the general characteristics of kingdom Plantae. Okay, first is all the members of the kingdom Plantae, they are eukaryotic organisms. Eukaryotic means if we see the plant cell, then that these cells are eukaryotic type of cells, means the well-defined nucleus is there and membrane-bound organelles, they are present. Okay, but when I am saying well-defined nucleus, this means nucleus has its own cell, a nuclear membrane. And if I am saying membrane-bound organelles, this means all the cell organelles with their characteristic membranes, they are present. Another very important thing is that members of kingdom Plantae, they are the chlorophyll containing members. Since they have chlorophyll, this means they are able to do the process of photosynthesis. ठीक है बेटे, photosynthesis जो है वो कर सकते हैं. तो generally all the members, they are autotrophic in nature. They are able to prepare their own food because they have this green color pigment chlorophyll present in their leaves. Okay, students. So you know that plants are always autotrophic in nature, but exceptions are there. So there are some plants which are heterotrophic in nature. So you have heard about so many plants such as insectivorous plants. ठीक बेटे, insectivorous plants और parasitic plants ऐसे plant होते हैं जो कि heterotrophic mode of nutrition रखते हैं. ठीक, तो there are some examples given in your book. Some of the insectivorous or parasitic type of plants are, ठीक है, bladderwort and Venus flytrap. तो search for their photographs on net. Bladderwort and Venus flytrap जो हैं, they are the insectivorous type of plants. They generally obtain their nutrition by feeding on insects. And another is Cuscuta. तो Cuscuta, ठीक है, it is a kind of a parasitic plant. So when it grows on the host plant, so it draws its nutrition from the host plant. Okay बेटे, इसके अलावा देखिए, if I am saying chlorophyll pigment is there, this means well developed chloroplast cell organelle is also present in these members of kingdom Plantae. ठीक बेटे, and regarding the cell wall, so cell wall is made up of a complex type of carbohydrate known as cellulose. ठीक है, cellulose से बनी हुई cell wall होती है. So there are so many ठीक है members that comes under kingdom Plantae under various divisions. तो उसमें हमारे पास algae आ जाते हैं. We have algae which have a thallus like body, and slightly advanced above the algae are the bryophytes. So we can say that bryophytes also have thalloid-like body, but the thallus is well differentiated in case of bryophytes. Okay, but so here we can say that root-like, stem-like, ठीक है, structures are present. तो thallus-like body तो रहती है bryophyte में, but थोड़ा सा differentiation हो गया होता है. तो इसलिए वहां पे root, leaf and stem-like structures they are very much visible. Okay, so next to the bryophytes, थोड़े से जो उनसे एडवांस हैं, they are known as the pteridophytes, and pteridophytes are simply known as ferns or decorative plants. Okay बेटे, तो pteridophytes के बाद we have the vascular plants, and two types of vascular plants are there. ठीक है, gymnosperms and angiosperms. तो gymnosperms में you know that seed formation is there in both gymnosperms as well as angiosperms. But in gymnosperms, these seeds they are naked. ठीक है, seeds कैसे होते हैं? Naked seed होते हैं. और जो angiosperms हैं, उनमें seeds जो हैं they are enclosed inside the wall of the ovary. ठीक है, and that is known as a fruit. तो you know that कि हमेशा seed जो है वो ovule से बनता है और जो ovary है वो हमेशा fruit बनाती है. तो in gymnosperms, ठीक है, the seeds are naked, whereas in angiosperm seeds they are well covered. Okay बेटे, so these all divisions we are going to study in detail in chapter 3. So regarding the life cycle of the plants, so you always remember there are two distinct phases that are present in the life cycle of the plant. ठीक है, first is the gametophytic phase and another is the sporophytic phase. तो always remember, देखो name से पता लग रहा है, gametophytic phase means that phase of the life cycle of the plant where gamete formation takes place. ठीक है, you have also learned in previous classes
that gametes are the haploid cells having single set of chromosomes and they are always formed in the reproductive cells जिनको कि हम germ cells भी कहते हैं. ठीक है बेटे. तो गैमेटोफिटिक फेज किसी भी प्लांट का वो फेज है जिसमें उसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है. And what about the sporophytic phase? So always remember कि sporophytic phase is a diploid type of phase in the life cycle of plant. और sporophytic phase जो है उसकी शुरुआत जो है जाइगोट से होती है. ठीक है. और उसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो हमेशा याद रखिए कि गैमेटोफिटिक फेज इज अ हैप्लॉइड फेज and sporophytic phase is a diploid phase. Okay bete. One another important thing is that both these haploid and diploid phases they repeat themselves. ठीक है. किसी भी प्लांट के लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेज अपने आप को रिपीट करते रहते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड. सो दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. ठीक है. इसे हम ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं. तो इसके अलावा देखिए sometimes what you observe in the life cycle of a plant that the gametophytic phase it is dependent. ठीक है. gametophytic phase जो है या फिर अगर हम sporophytic phase की बात करते हैं तो उसमें वो कहता है कि कई बार जो sporophytic phase है ठीक है कुछ प्लांट्स के अंदर हमें डोमिनेंट नजर आता है और कुछ प्लांट्स जो है उनके अंदर जो है गैमेटोफिटिक फेज जो है वो डोमिनेंट होता है एंड स्पोरोफिटिक फेज जो है वो गैमेटोफिटिक फेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है. ठीक है. तो कई बार हमें दोनों फेसेस में से कोई एक फेज जो है वो डिपेंडेंट नजर आता है ऑन द अदर फेज. तो व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज अ काइंड ऑफ ए फिनोमेना in which the gametophytic phase after the gametophytic phase the sporophytic phase is there. So I want to say that both the phases gametophytic as well as the sporophytic phases they repeat themselves after a particular time period. Okay but this is all about the general characteristics of plants. So we will study about all of these divisions in detail in chapter 3 that is plant kingdom. So I am proceeding with the next one. So next kingdom is kingdom Animalia. Okay, members of kingdom Animalia is very much familiar to you. You have learned about them and their general features in class 9 too. So you know that kingdom Animalia, their members are truly heterotrophic in nature. They are not able to prepare their own food. They are dependent on plants or on those animals which are dependent on plants for obtaining their food. ठीक है बेटे. या तो वो प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं या फिर वो उन एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं जो प्लांट से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सेल टाइप हियर इज अगेन यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट मींस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज देयर. ठीक है. ऑल एनिमल्स दे आर जनरली मल्टी सेलुलर इन नेचर. एनिमल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं बट इफ वी कंपेयर देम विद मेंबर्स ऑफ प्लांट किंगडम तो प्लांट किंगडम में हमें यूनिसेलुलर भी नजर आते हैं. तो मोस्टली वो कहते हैं कि मल्टी सेलुलर मेंबर्स आर देयर इन किंगडम एनिमेलिया. ओके स्टूडेंट. another very important thing that is related with the animal cell is that in animal cell wall is not present. Instead of them the outer boundary is actually the plasma membrane or the cell membrane. Okay. And they obtain their food directly or indirectly from plants. Okay student. They digest their food inside their body. ठीक. and they store their food in the form of glycogen. You know that plants जो है वो अपना food जो है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं एंड जो एनिमल्स हैं वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपना फूड जो है उसको स्टोर करते हैं. ओके बेटे. उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स दे आर. So one of the mode of nutrition which is generally present in multicellular organism is holozoic mode of nutrition. So what is holozoic mode of nutrition? तो हमेशा याद रखिए in the holozoic mode of nutrition the animal engulfs the whole food material and the breakdown of that food material it actually happens inside the body of the organism with the help of special type of biocatalyst known as enzymes. ठीक है. फिर से सुनेंगे. हॉलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एनिमल जो है वो पूरा का पूरा फूड मटेरियल जो है उसको इनगल्फ कर लेता है और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर
उस फूड का ब्रेक डाउन होता है सिंपलेस्ट फॉर्म्स में फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फॉर्म, किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से, विच आर बायोकैटलिस्ट. So this mode of nutrition is holozoic mode of nutrition. Then regarding their growth and development, so every member of kingdom Animalia they undergoes a phase of growth and development. ठीक है, they have a definite growth patterns. So initially they take birth, उसके बाद उनकी adult age चलती है, ठीक है, और उसके बीच में adolescent period भी आता है, and then they enter into their old age. उसके बाद वो अपने old age के अंदर enter हो जाते हैं. ओके बेटे, हायर फॉर्म्स जो है उसमें एडवांस्ड करेक्टर्स भी हमें नजर आते हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड, यू कैन से सेंसरी ऑर्गन्स, उनके अंदर वेल डेवलप्ड सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं, एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म इज आल्सो वेल डेवलप्ड. दिस मींस द नर्वस सिस्टम इज स्लाइटली एडवांस्ड इन द मल्टीसेलुलर फॉर्म्स, though their preliminary structures of the nervous system is there in the, you can say, simplest forms too. And all animals they are capable of locomotion. ठीक है, they can do movements according to their will. So what is the basic difference between locomotion and movement? तो आप कह सकते हैं कि जब कोई एनिमल अपनी विल के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है तो उसको हम लोकोमोशन कहते हैं. तो फॉर दिस पर्पस दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन दैम. Okay student, regarding the method of reproduction, so the advanced method of reproduction, that is sexual reproduction, is generally seen in the members of kingdom Animalia. So male and female, ठीक है, this male and female they have characteristic reproductive organs where the formation of the gametes it takes place. ठीक है, gametes का formation होता है और उसके बाद ये gametes जो हैं, ठीक है, they are finally injected in the body of the female organism. So both the male and the female organisms they copulate, and the ejection of the sperms or the gametes it takes place from the male partner into the female genital tract, and later on fusion is there, fusion of the gametes is there, and zygote formation it forms, and zygote later develops into the embryo. ठीक है बेटे, अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोलॉन्ग्ड फेज होता है और उसमें काफी सारी माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं जिन्हें हम क्लीवेज डिवीजन्स कहते हैं. ठीक है, तो इन क्लास 12 यू विल गोइंग टू स्टडी अबाउट the human reproduction in detail, where you see that the embryo development stage in humans is a longer one. Okay student, so this is all about the characteristics of kingdom Animalia. So multicellular organisms, they are eukaryotic, then heterotrophic. They have the ability to digest their food within their body. They have different mode of nutrition. Okay, they lack cell wall. Instead of cell wall, the plasma membrane is there. They have the ability to move according to their wills. That's why these type of movements are known as locomotions. Okay student, I am proceeding with the entirely new topic. Okay, you have also learned about this a little bit in your previous classes. So there are some of the living organisms, okay, who are not given any rank under the 5 kingdom system of classification. So here I am going to discuss about those organisms. So first among these are viruses. Then we will see about viroids, prions, and lichens. ठीक है बेटे, तो ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें RH व्हाइटेकर जो है उन्होंने अपने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कोई रैंक नहीं दिया है, but we know that they all comes under the living organisms and they were discovered by different scientists, ठीक है, in different times. So we have learned about so many diseases, and one of the common disease is common cold or flu. You have heard about common cold and flu. You have also suffered from these diseases many times. So all of these diseases, flu, common cold, they are actually the viral virus diseases. ठीक है बेटे, so what are these viruses? So actually some of the scientists they thought that they do not come under the living organisms because when these viruses they are actually present outside the body of the host, they are not showing any activity that is actually shown by the living organism. तो जब भी ये होस्ट के बॉडी के बाहर होते हैं वायरसेस, उस समय ये जो है इनर्ट बिहेवियर शो करती हैं, किसी तरह की कोई एक्टिविटी शो नहीं करते. ओके बेटे, अगर इनके सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो दे आर एक्चुअली द नॉन सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं
And if you see their structure, then their structure is somewhat having inert crystalline kind of structure. ठीक है, ये कोई एक्टिविटी नहीं शो करते, ये इनर्ट बिहेवियर शो करती है, और जैसे क्रिस्टल होता है उस तरह के जो है ये हमें नजर आते हैं. Okay, students. But one very special thing about these viruses is as soon as they enter into the body of the host organism, they start acting, they start showing activity. ठीक है बेटे, outside the body they are not doing any kind of activity, but as soon as they find a host, they enter into the body of the host, they start doing activity by utilizing the machinery of the host cell, and in this way they replicate themselves and they form colony of their cells. ठीक है, तो इस तरह से वो कहता है कि ये होस्ट जो है उसको यूज करके अपने रेप्लिकास बनाती हैं, अपनी कॉपीज बनाती हैं अपने सेल्स की, और धीरे धीरे होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है इसको वीक करते रहते हैं, और इन सर्टेन केसेस द डेथ ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म इट टेक्स प्लेस फाइनली. ओके, सो द नेम वायरस, वायरस नेम जो है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो उसका एक्चुअल मीनिंग है वीनम. वीनम मीन्स होता है पॉइजनस फ्लूइड. So first time these viruses they were discovered by the scientist, ठीक है, Dmitry Ivanovsky in the year 1892. And what he said that viruses they are special type of microorganisms, means they are not visible by your naked eye. And when he find out these viruses, he discovered that these viruses they are actually causing a mosaic disease in the tobacco plant. So first time the scientist Ivanovsky in the year 1892 discovered viruses, and he find that the viruses are the type of microorganisms which cause a special disease, mosaic disease in tobacco plant. And because of this disease, the production that we obtain from the tobacco plant it decreases at an enormous rate. Okay, बेटे. So उसके बाद वो कहते हैं कि what he discovered about these viruses, so he discovered that these viruses are even smaller than bacteria, because when we pass these viruses through the bacterial filters, they can easily pass through. ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि जब हम वायरसेस जो है उनको बैक्टीरियल फिल्टर्स में से पास करते हैं तो वो इतने छोटे हैं कि वो बैक्टीरियल फिल्टर्स जो है उसमें से इजीली पास हो जाते हैं. दिस मींस द साइज ऑफ द वायरसेस is very less, they are, you can say, very smaller as compared to the bacteria. Okay, but so in the year 1898 there was another scientist and his name was M.W. Bezenik, and M.W. Bezenik demonstrated that the extract of the infected plant of tobacco could cause infection in healthy plants too. उन्होंने ये बताया कि टोबैको प्लांट जो है उसमें जो इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स हैं उसमें से अगर हम इस वायरल एस्पेक्ट को आइसोलेट करें और उसे हेल्दी प्लांट के अंदर इंजेक्ट कर दें तो उससे हेल्दी प्लांट जो है वो भी इन्फेक्टेड हो जाती हैं, और इसीलिए उसने इस पॉइजनस वीनम लाइक फ्लूइड जो है उसके लिए यहाँ पे नेम यूज किया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम. ओके बेटे, आई एम अगेन रिपीटिंग, ही कॉल्ड दिस वीनम लाइक फ्लूइड as contagium vivum fluidum. ओके, एंड इसका मतलब है infectious living fluid. उसने कहा है कि वायरसेस जो है फ्लूइड की फॉर्म में होती हैं और उनके अंदर ये अबिलिटी होती है कि वो हेल्दी सेल्स जो हैं या हेल्दी प्लांट्स जो हैं उनमें भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, इन द ईयर 1935 there was another scientist. Okay, and what is the name of that scientist? तो कहते हैं कि the name of that scientist was W.M. Stanley. In the year 1935, he showed that viruses could be crystallized. ठीक है, वायरसेस जो हैं वो क्रिस्टल्स की तरह होते हैं और उनके जो क्रिस्टल्स हैं they are made up of proteins. ओके, उनके क्रिस्टल्स जो हैं उनके क्रिस्टलाइन शेप जो है वो एक्चुअली प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है. And whenever they are outside the body of the host, they are not showing any kind of activity. This means they are inert. But as soon as they enter into the body of the host, they utilize the metabolic machinery of the host to produce their replicas or copies. Okay, and their rate of reproduction is also very fast. And he also find out that viruses, they are obligate parasites.
ठीक है, वायरसेस जो है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब स्ट्रिक्टली पैरासाइट होते हैं, वो होली सोली होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर ऑब्टेनिंग देयर न्यूट्रिशन। तो जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन वो बनाता है या जो भी चीजें वो फूड ऑब्टेन करता है किसी भी मेथड से, वो सारा वायरसेस जो है वो ले जाती हैं। सो एज अ रिजल्ट द होस्ट ऑर्गेनिज्म gets weakened day by day and ultimately the death of the host organism it takes place. Okay bete, so regarding more about the structure of these viruses, so I have already described that the viruses they have special type of cells which are actually crystalline. ठीक है, तो हम सेल तो नहीं कह सकते क्योंकि मैंने वर्ड यूज किया है नॉन सेलुलर होते हैं, तो मतलब उनका जो भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं ना वो क्रिस्टलाइन शेप का होता है, और ये क्रिस्टल उसके किससे बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। एंड बिटवीन दीज प्रोटीन्स, ठीक है, इन प्रोटीन्स के जो क्रिस्टल्स हैं उसके बीच में न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट है। सो दिस मीन्स दीज वायरसेस दे कंटेन डीएनए और आरएनए एज न्यूक्लिक एसिड्स. So two things actually made the viruses. One is the crystalline structure, which is made up of protein, and inside the crystalline structure, what you see in the diagram, the nucleic acids are present. So some of the viruses they have DNA as the genetic material, or some of the viruses have RNA as genetic material. ठीक है बेटे, जिन वायरसेस के अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल होता है उनको हम रेट्रो वायरसेस कहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट हो। ओके बेटे, तो कहते हैं कि जो प्रोटीन कोट होता है, ठीक है, तो जो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो प्रोटीन कोट है उसको हम कैप्सिड कहती हैं। एंड दिस कैप्सिड इज फर्दर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉलर यूनिट्स, and each of these smaller unit which form the entire big capsid which is a protein coat, it is known as capsomeres. तो हर एक वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन कोट से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए और आरएनए, एंड प्रोटीन कोट जो है उसके सेंटर में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, और हर एक प्रोटीन कोड कई स्मॉलर यूनिट से मिलकर बना है विच इज नोन एज कैप्सोमेयर्स। ओके बेटे, सो व्हाट आर कैप्सोमेयर्स? दे आर द स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ द कैप्सिड, and the capsid it protects the nucleic acid from inactivation by the outer physical conditions. ठीक है, तो एनवायरमेंट में कैसे भी कंडीशंस प्रेजेंट हैं, जो कैप्सिड होता है वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करके रखता है, और आउटर एनवायरमेंटल कंडीशंस जो हैं उनका वायरस जो है उसकी एक्टिवेशन पे कोई असर नहीं होता है। ओके बेटे, इसके अलावा देखिए देयर आर सम ऑफ द वायरसेस व्हिच एक्चुअली इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो सच टाइप ऑफ वायरसेस दे आर नोन एज द बैक्टीरियोफेजेस. So always remember it is a one mark question. What are bacteriophages? Bacteriophages are those viruses which infect bacteria. जो बैक्टीरिया जो है उसके ऊपर फीड करते हैं। ओके बेटे, उसके बाद देखिए वायरसेस दे कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस, अलग अलग तरह की डिजीजेस जो हैं वो कॉज करती हैं। पर इससे पहले उसने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई है दैट कैप्सोमियर may have different type of shapes. It may be helical in shape. कैप्सोमेयर्स की हेलिकल शेप भी हो सकती है, पॉलीहेड्रल शेप भी हो सकती है। ठीक बेटे, तो वायरसेस जो हैं दे आर कॉजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। मफ डिजीज जो मोस्टली चिल्ड्रंस के अंदर आपको नजर आती है, वायरल कॉज डिजीज है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स इज अ काइंड ऑफ ए डिजीज जो वायरस से होती है। इसके अलावा देखिए हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा, ठीक है, ये सारे डिजीजेस जो हैं दे आर कॉज्ड बाय वायरसेस। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हियर द नेम ऑफ द वायरसेस बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट असाइनमेंट फॉर यू। सो फाइंड आउट द नेम ऑफ द वायरसेस दैट आर कॉजिंग मम्स, स्मॉलपॉक्स, हर्प्स। ओके बेटे, इनके नेम फाइंड आउट करो अपनी जनरल नॉलेज जो है इंक्रीज करने के लिए, इन्फ्लुएंजा का वायरस कौन सा है। ठीक है, उसके बाद देखिए एड्स जो ह्यूमंस के अंदर एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इट इज आल्सो कॉज्ड बाय अ वायरस। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द वायरस व्हिच कॉज दिस डेडली डिजीज एड्स? यस स्टूडेंट्स, HIV. यस बेटे, HIV, इट इज ह्यूमन अमाइनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके बेटे, एंड इट इज अ पावरफुल वायरस ऑफ आवर टाइम. Still, we have not find any of the vaccine that can control AIDS, and I have already given one lecture on AIDS few days before.
तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अभी तक एड्स की वैक्सीन को तैयार नहीं किया जा सका है, क्योंकि एड्स वायरस का रेप्लिकेशन का रेट बहुत फास्ट है, ठीक है। और दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है दैट इज अबाउट द एड्स वायरस, कि एड्स वायरस जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो है ना उसको जो है शुगर कोटेड कैप्सोमेयर से छुपा के रखता है, जिससे कि किसी भी तरह का जो इम्यून रिलेटेड सेल्स हैं वो उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते, और वो सबसे पहले इम्यून रिलेटेड सेल्स को ही किल करता है। तो इसीलिए एड्स का जो विक्टिम है उसकी डेथ विद इन 10 ईयर्स जो है वो पॉसिबल है, अगर वो किसी तरह के कोई ड्रग्स ले रहा है लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो 10 ईयर्स के अंदर डेथ ना हो के 12 या 14 ईयर्स में हो जाएगी, बट डेथ इज 100% श्योर इन केस ऑफ एड्स। ओके बेटे, तो देयर आर सम ऑफ द वायरसेस दैट आर आल्सो कॉजिंग डिजीज इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में भी वायरल डिजीजेस हमें नजर आती हैं। तो समटाइम्स यू सी मोजाइक फॉर्मेशन इज सीन इन द डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। कई बार आप प्लांट के लीव्स देखते हैं, उसमें आपको ब्राउन स्पॉट्स नजर आते हैं, ठीक है, या फिर कोई उसका फ्रूट है उसके ऊपर आपको ब्राउन स्पॉट्स नजर आते हैं। तो इसमें से काफी सारे जो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं प्लांट्स में, ठीक है, चाहे उसके लीव्स के अंदर हैं पैचेस आपको ब्राउन नजर आ रहे हैं, या फ्रूट का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं हुआ है, डिफॉर्मेशन है, तो ये सारे वायरल कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, इफ यू हैव डन गार्डनिंग समटाइम्स विद योर पेरेंट्स, तो यू हैव ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स जिसको आप देखते हो कि उसके जो लीव्स होते हैं ना वो हमेशा कर्ल हो जाते हैं, प्लांट बिल्कुल हेल्दी होते हैं, एंड आप अचानक से देखते हो कि इसके लीव्स जो है ना कर्ल या रोल होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप उनको ओपन करने की भी कोशिश करेंगे तो दोस लीव्स कैन नॉट बी ओपन, ठीक है। तो रोलिंग ऑफ द लीव्स, कर्लिंग ऑफ द लीव्स जो है ये एक वायरल डिजीज के सिम्टम है। Then yellow and vein clearing, तो there is one disease that is found in lady finger plant, जिसे हम हिंदी में भिंडी कहते हैं, उसके अंदर एक डिजीज होती है, ठीक है, येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी। तो उसके अंदर जो हमारे लेडी फिंगर प्लांट होता है उसके जो लीव्स है ना उसमें से क्लोरोफिल पिगमेंट का लॉस हो जाता है, ठीक है, फ्रॉम द लैमिना ऑफ द लीफ फर्स्ट, देन फ्रॉम द वेन्स ऑफ द लीफ। तो एज अ रिजल्ट लीव्स जो है उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है, बाद में वो ब्रांचेस स्टेम्स में भी ये डिजीज हो जाती है। जैसे पूरा का पूरा जो भिंडी का प्लांट है, लेडी फिंगर प्लांट है, उसकी डेथ हो जाती है। तो येलिंग एंड वेन क्लियरिंग भी इसका सिम्टम है, येलिंग ऑफ लीव्स और वेन्स में से क्लोरोफिल पिगमेंट का लॉस होना, ठीक है। ड्वार्फिंग, समटाइम्स आप देखते हो कि यू आर गिविंग इनफ वाटर टू द प्लांट बट स्टिल द प्लांट इज नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ ग्रोथ, ठीक है, प्लांट आपको छोटा सा ही नजर आता है, बढ़ता ही नहीं है कोई पौधा। तो उस केस में उसमें सिम्टम देखा जाता है ड्वार्फिंग का, और ये एक वायरल डिजीज हो सकती है, ठीक है। स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट की अगर ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, बाकी सारे प्लांट अच्छे से ग्रो कर रही हैं पर कोई पर्टिकुलर प्लांट अगर ग्रोथ नहीं शो कर रहा, स्टंटेड ग्रोथ शो कर रहा है, तो दैट इज आल्सो द कैरेक्टर ऑफ यू कैन से सिम्टम ऑफ द वायरस। ओके बेटे, तो दिस इज ऑल अबाउट वायरसेस। Then after viruses we have even more little you can say smaller living organisms or microorganisms जिनका साइज जो है वायरसेस से भी छोटा है। तो in the year 1971 the scientist T.O. Diner discovered a new infectious agent that was even smaller than viruses in their size, and they are causing a disease that is potato spindle tuber disease, ठीक है। और उसने उस पे क्या देखा कि विरियोइड्स जो होते हैं वो वायरसेस से भी छोटे होते हैं साइज में, और वायरसेस और विरियोइड्स में द मेजर डिफरेंस इज दिस कि इन द वायरसेस द प्रोटीन कोड एज वेल एज न्यूक्लिक एसिड्स आर प्रेजेंट। प्रोटीन कोड इज नोन एज कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए और आरएनए, पर विरियोइड्स जो है उनमें सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटे, डीएनए भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है विरियोइड्स के अंदर, और इसमें प्रोटीन कोड नहीं होता जो वायरसेस में प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए इसको स्पेशल नेम दिया गया है विरियोइड्स। ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट भी वायरसेस के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो साइंटिस्ट का नेम याद रखेंगे, डाइनर वाज द साइंटिस्ट इन द ईयर 1971। उसने ये फाइंड आउट किया था कि ये डिजीज कॉज करते हैं पोटैटो प्लांट के अंदर। आपको पता है कि पोटैटो जो है वो ग्लोबुलर शेप रखता है, राउंड शेप होती है पोटैटो की, पर जब पोटैटो के अंदर विरियोइड डिजीज कॉज कर देती हैं तो इस तरह के पोटैटो हमें स्पिंडल शेप के नजर आते हैं, ठीक है, जैसे डिस्क होती है ना जिससे हम खेलते हैं वैसे बन जाते हैं पोटैटो, एकदम फ्लैट बन जाते हैं, और उसमें स्टार्च फॉर्मेशन जो है बहुत कम हो जाता है।
So this disease is known as potato spindle tuber disease and it was caused by the viroids. So always remember, free RNA is only there in the viroid. No protein coat is present as it is present in viruses, and molecular weight of viroids is also less. ठीक बेटे, तो RNA जो है low molecular weight वाला इसके अंदर present. So this is all about viroids. Search for diseases that are caused by viroids. ठीक है, और diseases के name पता लगाओ जो viroids के द्वारा cause की जाती है. Humans में भी अगर कोई ऐसी disease है तो find out for that. Okay, but don't limit yourself to your book only. Search for more and more diseases. Okay, student, I have written here the detailed account. They are smaller circular RNA molecules. They can infect plants and they have no protein coat. इसमें protein coat नहीं होता है. ठीक है, आयरलैंड के अंदर सबसे पहले पोटैटो में ये डिजीज देखी गई थी, जिसे मैं बता रही हूँ आपको, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज. आयरलैंड जो कंट्री है उसमें सबसे पहले ये डिजीज फाइंड आउट हुई थी. ठीक है, और उसके बाद वो कहता है आई हैव रिटन सम एडवांस पॉइंट हियर. तो रिजेंबल एंट्रॉन्स कट आउट ऑफ यूकैरियोट्स कंसिस्ट ओनली ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इसमें ऐसे आरएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती हैं और सिर्फ एंट्रॉन यूनिट्स होती हैं. देखो बेटे, एंट्रॉन यूनिट का क्या मतलब है? जब मैं आपको 12th क्लास में डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊंगी ना, तो आपको मैं ये भी बताऊंगी कि डीएनए जो है उससे आरएनए बनता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान. ठीक है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. दैट इज द सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए. तो हमेशा याद रखिए कि जब भी डीएनए में से आरएनए बनता है तो ये जो आरएनए होता है उसमें दोनों तरह के जीन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कुछ एक्टिव जीन्स होते हैं, जो एक्टिव जीन्स वाली सेगमेंट होती है उनको हम, ठीक है, एंट्रॉन्स कहते हैं, और कुछ एक्सॉन्स होती हैं. तो इसमें वो कहता है कि एंट्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं. बस इतना भी आप याद रखेंगे. आई विल टेल यू इन डिटेल अबाउट दिस इन क्लास 12. देखो, ये ऐसे पैथोजेंस हैं जो कि वायरसेस से बिल्कुल डिफरेंट हैं, और इनमें जो डिजीजेस ये कॉज करते हैं उनके सिम्टम्स भी वायरसेस के सिम्टम्स से वेरी करते हैं. Okay, students, so I am proceeding with the next one. They are known as prions. P for protein and P for prions. तो देखो, prions जो हैं उनके बारे में ये पता लगा है कि ये infectious proteins होती हैं. ठीक है, अब तक तो हमें ये पता था कि generally nucleic acids they are causing diseases, but now some of the scientists they found that prions are the special type of proteins which are infectious in nature. ठीक है, तो इससे ये पता लगा है कि ये प्रोटीन्स जो है एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, और वायरसेस जो हैं उनसे साइज में बहुत स्मॉलर होते हैं. और इन्होंने काफी सारी डिजीजेस जो हैं वो नोट डाउन हुई हैं इन मॉडर्न टाइम जो प्रियॉन्स के द्वारा कॉज की गई हैं. वन ऑफ दैट डिजीज इज बोबाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी. सी योर टेक्स्ट बुक में देखिए, अंडरलाइन कर लेंगे, बोबाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे कि हम मैड काउ डिजीज कहते हैं. ये कैटल के अंदर देखी जाती है, एंड इसी तरह से ह्यूमन बींग्स में भी ये एक डिजीज कॉज करते हैं प्रियॉन्स, एंड दैट इज नोन एज जैकब डिजीज. ओके बेटे, तो एक छोटे असाइनमेंट आपकी ये है कि आप जैकब डिजीज और मैड काउ डिजीज के सिम्टम फाइंड आउट करके रखिए. आई विल गिव यू द एडिशनल क्वेश्चन फॉर दिस. ओके स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट प्रियॉन्स. Now I am proceeding with the next one. I have written here the detailed account of prions. Prions are infectious particles that lack nucleic acid, and the type of infectious agent is protein only. ठीक है बेटे, तो उसके बाद वायरसेस और विरोइड से ये डिफरेंट होती हैं. इसमें न्यूक्लिक एसिड्स नहीं होती है. डिपेंडेंट अपॉन इट्स एबिलिटी टू फोल्ड, अपने आप को किसी भी तरह की शेप में ये फोल्ड कर सकते हैं प्रोटीन्स, थ्री डायमेंशनल शेप में. ठीक है बेटे, कॉम्प्लेक्सिटी और हार्मोनी की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स रैपिडली फोल्ड इनटू करेक्ट शेप डिस्पाइट द न्यूमरेबल पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस. प्रोटीन्स के बारे में ये नोन है कि वो किसी भी तरह की शेप्स बना सकती हैं. तो ये भी जो है फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं और ये डिजीजेस कॉज करती हैं. ठीक है, अपनी रीफोल्डिंग करके अब नॉर्मल बन जाती हैं और फिर अलग अलग तरह के डिजीजेस कॉज करते हैं. तो 2 डिजीजेस आपने याद रखनी है, जैकब डिजीज एंड मैड काउ डिजीज. देन वी हैव लाइकेंस. You know that what are lichens? Lichens is a symbiotic association between two organisms, algae and fungi. ठीक है, algal partner को हम phycobioent कहते हैं and fungal partner is known as mycobioent. तो both of them they benefited each other. algae जो है वो food prepare करती है fungi के लिए, and fungi जो है उसको shelter मिलता है और वो nutrients जो हैं और water absorb करके देती है. ठीक है, तो दोनों जो है एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, दोनों ही एक दूसरे से बेनिफिटेड होती हैं.
लाइकन्स ऐसे एरियाज में ग्रो करते हैं जहां पॉल्यूशन कम होता है, तो दे आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. दे नेवर ग्रो इन नॉन पॉल्यूटेड. ठीक है, जहां पे भी पॉल्यूटेड एरियाज होते हैं वहां पर जो है लाइकन्स जो है वो ग्रो नहीं करते. Okay, बेटे, तो this completes your chapter biological classification. Tomorrow we will discuss the NCERT questions. If you have any doubt, you can send me your doubts on my WhatsApp number. Okay, students.